In the last class, we were talking about the different starters, and so far we have talked about direct online starter. Then there were other starters. One was the register starter, three-phase register starter, and we have mentioned its advantage as well as disadvantage. And secondly, that was the auto transformer, three-phase auto transformer starting methods. Okay, that starting method is not meant that the induction motor is not self-starting. It is meant because high inrush current is there at the time of starting, that is 5 to 8 times the full load current. To save the motor winding from any damage, we provide this starter, and among them prominent was the which one? DOL and the auto transform starting, and the third one was which one? Which one was the third one? Star delta starter. What was there? Starter. Now you can see this is a very important topic, star delta starter. As the name suggests, means first the stator windings. Now windings are there. How many terminals are there in the winding? There are 2 terminals for each winding. Okay, like this. This is one terminal, this is second terminal. Similarly, this is first terminal, this is his second terminal. So what you do in star winding, you take the second terminal of each winding and connect to a common point that became neutral, and you connect supply to the remaining terminals. Is it clear? And what happens in the delta? Okay, the second of is connected to the first, second of the second is connected to the third, and the second of the third is connected to the second of the first, and in this way a triangle is formed, and you call this a delta winding. Is it clear or not? Now what happens? You know the basic rules of the star delta. In star network, what happens? What is V? V phase is how much? In a balanced system, V phase is equal to V line upon root 3. Is it clear? Means voltage is reduced. Phase voltage is reduced. Why? Because of the star connection. Because of the, तो जो ये वाइंडिंग है, फेज मतलब वाइंडिंग के अक्रॉस. What do you mean by phase voltage? Voltage across the winding. So if you connect in the star, it is between R and neutral, R and or Y and neutral, or B and neutral. So that is being reduced because of which connection? स्टार कनेक्शन. तो वोल्टेज रिड्यूस करने से हमें क्या फायदा होगा? करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ज्यादा होगा, कम होगा? करंट क्या होगा? कम होगा. 1/√3 टाइम्स ना कम हो जाएगा. ठीक है. और हमें अगर ये हमें क्या चाहिए स्टार्टिंग में इंडक्शन मोटर में, क्या हमें करंट को कम करना है, तो हमारा कुछ ऐसा हो जाए कि स्टार्टिंग में हमारी वाइंडिंग स्टार में हो जाए. कौन सी? स्टेटर वाइंडिंग. कौन सी? वाइंडिंग. तो वोल्टेज रिड्यूस मिल जाएगा, फेज वोल्टेज हमें रिड्यूस मिल जाएगा, तो फेज करंट रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होते ही हमारी मोटर सेफ हो जाएगी. और जैसे ही मोटर पिकअप करे, ये वापस किस में कनेक्टेड हो जाए? डेल्टा में. किस में कनेक्ट हो जाए? डेल्टा में. तो हमें फेज वोल्टेज इज इक्वल टू हाउ मच? लाइन वोल्टेज. इन डेल्टा व्हाट हैपेंस? What is the peculiar characteristics of delta connection? V phase is equal to V line, और हम फुल अप्लाइड वोल्टेज वाइंडिंग पे लगा देंगे. तो काम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? तो ये का ये काम हम इसमें करेंगे. ठीक है. मोटर पहले किस में कनेक्टेड होगी? स्टार में, और जैसे ही मोटर पिकअप करेगी इट विल कनेक्टेड इनटू डेल्टा. सो दिस इज व्हाट मेंट बाय द स्टार डेल्टा कनेक्शन. सो और ये चीपेस्ट फॉर्म है. ये क्या है? चीपेस्ट. ठीक है. सिर्फ कनेक्शन का ही तो हेरफेर कर देना है. पहले स्टार में डाला, मोटर ने जैसे ही पिकअप की वापस इसको डेल्टा में डाल दिया. तो एक डबल पोल चाहिए हमें. ठीक है. एक बार स्टार में कर दिया, स्टार में जैसे ही कनेक्टेड हुआ, मोटर रन करने लगी, वापस उसको किस में कर दिया? डेल्टा में. तो चीपेस्ट स्टार्टर कौन सा है हमारा? स्टार डेल्टा. और कोई लॉस भी नहीं, क्योंकि हमने एक्सटर्नली कोई रजिस्टर भी इसमें नहीं डाला. सिर्फ एक स्विच के थ्रू हम स्टार डेल्टा में कर रहे हैं, उसी वाइंडिंग को जो स्टेटर में लगी हुई है. एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगा रहा, केवल एक स्विच के अलावा, एक स्विच के अलावा. अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड द चीपेस्ट स्टार्टर.
है। नाउ व्हाट इज यूजेस, इट यूजेस अ ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच। समझिए, देखिए लैंग्वेज को समझिए, आपको क्या लिखा हुआ है, डबल थ्रो, ट्रिपल, सॉरी इट इज नॉट ट्रिपल, ट्रिपल का मतलब ही 3 ही होता है, तो TPD T ऐसे शॉर्ट फॉर्म भी लिखे होते हैं। आपको ये क्या आ गया, T फॉर ट्रिपल, P मीन्स पोल, D मीन्स डबल और T मीन्स थ्रो। तो कैसे होगा सर, ट्रिपल क्यों है, फेज कितने आपके 3, और तीनों को एक साथ लगाना है, तीनों को एक साथ लगाना है। जब भी जैसे मान लो सिंगल पोल हो तो केवल सिंगल फेज होगा, डबल हो तो फेज और न्यूट्रल साथ में। ऐसे एमसीबी आती है, आप बाजार में जाओगे ना, ठीक है, तो आप कहोगे सर मुझे सिंगल पोल वाली एमसीबी चाहिए, जो आपके बाहर भी इधर बॉक्स में, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लगी हुई एमसीबी, ऊपर किया नीचे किया, ऑन किया और ऑफ किया, वो क्या कहलाएगी, सिंगल पोल। ठीक है, दूसरी होती है डबल पोल, मतलब मैं एक साथ फेज न्यूट्रल दोनों को बंद करूं, वो सिर्फ किस में लगी, फेज में, सिंगल पोल वाली सिर्फ फेज में। जैसे अभी हम स्ट्रीट लाइट में लगाना है, न्यूट्रल भी लगाना है, तो उसमें हमने सभी फेज में डबल पोल वाली लगा दी, तो जैसे ही बंद करूं उसका फेज और न्यूट्रल दोनों ही बंद हो जाए। ठीक है, एक होती है ट्रिपल पोल, ट्रिपल पोल मीन्स RYB, तीनों फेज एक साथ ऑन और एक साथ बाहर। एक होती है क्वाड्रपल पोल, फेज और न्यूट्रल एक साथ बंद हो। यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, लेकिन हमारे यहां पे कौन सा यूज करेंगे, ट्रिपल पोल। और डबल थ्रो का क्या मतलब हुआ, थ्रो मतलब फेंकना, थ्रो मतलब फेंकना। ठीक है, एक बार स्टार में फेंका और दूसरी बार डेल्टा में, इसलिए क्या होगा, डबल। अरे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये टेक्निकल वर्ड है, इनको हमें प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है, यूं पढ़ लो रटोगे, ट्रिपल फोल्ड, डबल थ्रो। ट्रिपल मींस 3 फेज, डबल थ्रो मींस one in star, in one instant it is star connected, another instant is delta connected. Is it clear? So initially the switch connects to the stator winding in star form. Why star form? Because voltage is reduced to, the phase voltage is reduced to 1 upon √3 times, and therefore it reduces the current also, and the motor is saved from the high inrush current at the starting time. Starting time में जो high inrush होता है वो हमने कम कर दिया। कैसे कम कर दिया, वोल्टेज को रिड्यूस करके। वोल्टेज रिड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि वाइंडिंग्स वर इन स्टार कनेक्टेड, सो फेज वोल्टेज इज 1 upon √3 times द लाइन वोल्टेज। अरे समझ में आया क्या नहीं आया? ये सब बातें आपको जब एक तो डायग्राम बनाना, देखिए जो एग्जामिनेशन में जो ट्रिक एंड ट्रिक्स बताता हूं मैं आपको, ठीक है, एक तो डायग्राम, ऐसे इंजीनियर डायग्राम जरूर होना चाहिए आपके पास, बिकॉज अ पिक्चर इज 10,000 पावरफुल देन अ वर्ड। अ पिक्चर इज वर्ड। आप है ना लिखते जा रहे हो, डायग्राम कुछ है ही नहीं। आजकल एग्जामिनर के पास भी टाइम नहीं है, तो जैसे आपकी पिक्चर देख रहा, ओ करेक्ट, गुड, वेल लेबल्ड डायग्राम आपने बना दी, कॉइलें, ठीक है, कुछ नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिखा 1 1 डैश 2 2 डैश 3 3 डैश, सिर्फ ये 3 बना दिए और आपने कहा एग्जामिनर को छूट दे दी, जो समझना है समझ लो। तो फिर वो क्या समझेगा, आप समझ ही सकते हैं। इज इट क्लियर? आपको जैसे ये वेल लेबल डायग्राम है, दिख रहे हैं आप, 3 वाइंडिंग है, 1 1 डैश 2 2 डैश 3 3 डैश, टर्मिनल मार्क हो गए। ठीक है, उसके बाद आपने ये गोला बना दिया। ये गोला क्या शो कर रहा है, रोटर। क्या शो कर रहा है, ये ऊपर की कौन सी, स्टेटर वाइंडिंग। अब इन तीनों वाइंडिंग को लिया आपने, तीनों वाइंडिंग के टर्मिनल निकाल दिए, एक ऊपर से निकाला और एक नीचे से निकाले। अरे निकाले कि नहीं निकाले, ठीक है, एक 1 2 और 3 और एक 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आपको। ठीक है, ये देखिए 1 वाला इधर आया, 3 वाला इधर आया और ये 2 वाला इधर आया। ठीक है, इसको किससे कनेक्ट करना है आपको, ये 3 फेज सप्लाई है। ये क्या है, 3 फेज सप्लाई। ठीक है, और यहां पर एक आपका न्यूट्रल पॉइंट बना हुआ है, स्टार नेटवर्क। क्या बना हुआ है, स्टार। और ऊपर क्या होगा, 1 2 3 निकले पॉइंट, 1 डैश 2 डैश और 3 डैश पॉइंट निकले। इज इट क्लियर? ऐसे ही आप इसको
इस स्विच को इधर लगाएंगे, ये कौन सा स्विच है? टीपी dt। कौन सा स्विच है? टीपी dt। उसको लिखेंगे टीपी dt मतलब ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच। तो पहला आपका ये थ्रो इधर आएगा, पहला थ्रो इधर आएगा, तो इसका मतलब आपकी वाइंडिंग किसमें कनेक्टेड हुई? स्टार में। और दूसरा थ्रो जैसे ही मोटर ने पिकअप किया किधर आएगा? ऊपर डबल थ्रो डेल्टा में, तो वाइंडिंग किसमें कनेक्ट हो जाएगी? डेल्टा में, और आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। सो यू रिक्वायर्ड ओनली अ स्विच, you required only a switch, okay, and that switch has to be operated in two modes, one in star form and another in delta form, और दो थ्रो करने हैं इसलिए TP DT। Any doubt in this regard? ठीक है। So what are its advantage? It is cheapest and less maintenance is required। तो आपके जितने भी इंडस्ट्री है, जितने भी एग्रीकल्चर फार्म है जहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज हो रही है, वहाँ पर क्या क्या प्रयोग में लाया जा रहा है? क्या प्रयोग में लाया जा रहा है? ये स्टार डेल्टा स्टार्टर। आप कहीं भी जाकर देखें, इंडस्ट्री में जाकर देखें, आपको पैनल बोर्ड पे, आपके इवन हमारे लेबोरेटरी में जो भी 3 फेज मोटर है उसके लिए कौन सा स्टार्टर यूज किया जा रहा है? 3 फेज स्टार्टर, 3 फेज। Okay, and this is the theory. Again you can see that the current has reduced, okay, the current has reduced, so torque has also reduced, it has reduced to 58% approximately. Clear? This is clear or not? Next come the starting of the slip ring induction motor। अभी तक हमने कौन सी मोटर के बारे में बात किया था? स्क्विरल केज। इंडक्शन मोटर तो थी लेकिन कौन सी थी? स्क्विरल केज, क्योंकि रोटर स्क्विरल केज में था। एक और टाइप को होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब उसका मान लो कंट्रोल करना, तो उसमें एक हमारे पास क्या होती है, ये देखिए ये स्लिप रिंग, ये ब्रशेज है और ये क्या है? हमारी स्लिप रिंग्स। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास ऑलरेडी एक डिवाइस पड़ा है तो हम क्यों ना उसका यूज करें। हम स्टेटर में ना लगाकर कहां लगाएंगे? रेजिस्टेंस। वही मेथड वही है, आइदर बाय रेजिस्टेंस और बाय इंडक्टिव कॉइल यू control the inrush current। So we have connected the 3 resistance on the rotor side via slip ring and brushes। यहां इधर नहीं किया, स्टेटर देखो अलग से दिखा रखा है। ये कौन सी वाइंडिंग है? ये कौन सी वाइंडिंग है? रोटर वाइंडिंग। और रोटर वाइंडिंग इन जनरल क्या होती है? शॉर्ट सर्किट। इन जनरल क्या होती है? शॉर्ट सर्किट। इनको यहां पर शॉर्ट सर्किट किसके थ्रू कर रखा था? slip rings के through slip rings and brushes, but we have inserted a variable rheostat in these slip rings, and therefore changing this rheostat being variable you can change the initial current and there can save the motor from high inrush current during the starting period। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो टाइम कम है, ये डायग्राम बना देंगे। देखिए वेरी सिंपल है, ये आपका क्या है? स्लिप रिंग्स। ये क्या है? ब्रशेस। ब्रशेस से वेरिएबल कनेक्ट कर दिया, ये फिर वापस आपके ब्रश स्लिप रिंग ब्रशेस, इसको दूसरे वेरिएबल से कनेक्ट कर दिया। ये क्या है? आपके स्लिप रिंग्स, इसको तीसरे वेरिएबल से कनेक्ट कर दिया। एंड दीज आर बीइंग द फिक्स पॉइंट इज बीइंग कनेक्टेड टू दिस पॉइंट्स। यू कैन सी इन तीनों को शॉर्ट सर्किट कर दिया और इसको यहां से रुकना एक मिनट, हाँ, इनको शॉर्ट सर्किट कर दिया सेकंड पॉइंट को, और ये आपस में एक प्रकार का एक क्लोज सर्किट हो गया। एंड नाउ बाय वेरिंग द नॉब, वेरिएबल नॉब, यू कैन चेंज द करंट। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, सो पिक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट, थ्योरी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। थ्योरी तो आप लिख सकते हैं कि वही जो मैंने बताया कि रियोस्टेट्स आर करें, वेरिएबल रियोस्टेट्स आर देयर, वी कैन चेंज द वेरी एंड देयरफॉर वी कैन लिमिट द करंट एज पर आवर डिजायर। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका एडवांटेज भी है, ठीक है, कि इस जो स्लिप रिंग में जो रियोस्टेट कंट्रोल है इसमें दो चीजें हो सकती है। इसमें एक तो आपका इनिशियल करंट भी होता है और आपकी स्पीड कंट्रोल भी होती है, जो दूसरे स्क्विरल केज के जो है ना स्टेटर के साथ करते हैं उनमें केवल क्या होता है? वी आर लिमिटिंग द करंट बट स्पीड इज नॉट बीइंग कंट्रोल। यहां पर हम टॉर्क इंप्रूव करना मतलब स्पीड को भी कंट्रोल करना। तो नॉट ओनली द इनरश करंट बट स्पीड कैन आल्सो बी कंट्रोल और टॉर्क कैन आल्सो बी कंट्रोल। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है वो तो आप समझ ले कि रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं, दे विल
they will create what? Losses. They will create losses and thereby decreasing the efficiency. अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये चीज कुछ बातें कॉमन सेंस है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, वेरी क्लियर. रियोस्टेट यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली लॉसेस होंगे और लॉसेस के कारण एफिशिएंसी अफेक्ट होगी. अब एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्पीड कंट्रोल. अभी तक तो हमने क्या किया था? व्हाट वी हैव डन सो फार इन रश. देखिए कंफ्यूज मत होना. अभी तक हमने किसके बारे में बात की थी? स्टार्टर किसके लिए था? टू लिमिट द इनरश स्टार्टिंग करंट. अब हम बात करेंगे स्पीड कंट्रोल की. किसकी बात करेंगे? स्पीड कंट्रोल की. ठीक है, बाइक चलाते हैं सभी लोग, ठीक है, लड़कियां स्कूटी चलाती है, ठीक है. स्पीड कंट्रोल कैसे करते हो आप लोग? एक्सेलरेशन होता है और ब्रेक भी होता है, ठीक है. एक्सेलरेशन को जितना हम दबाएंगे बाइक में, ठीक है, उतना उसका वॉल्व खुलेगा, पेट्रोल ज्यादा जाएगा, पेट्रोल बर्न ज्यादा होगा, गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी. तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? उसको एक्सेलेरेटर के थ्रू यू आर कंट्रोलिंग द स्पीड एज पर योर ट्रैफिक रिक्वायरमेंट. और अगर ट्रैफिक के अकॉर्डिंग आपने नहीं किया तो फिर तो आप तो जानते ही आपको R&T में जाना पड़ेगा. इज इट क्लियर? सो आपकी आंखों को भी तेज रखना है, आसपास का वातावरण भी देखना है, क्योंकि आजकल ये जो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट टू व्हीलर के साथ होते हैं, ठीक है, वो ये सोचता है कि हेलमेट लगा दिया तो मैं सुरक्षित हो गया. कुछ लोग वो भी नहीं लगाते. कुछ लोग, अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब जो पैदल चलने वाले. मैं कई बार बाहर जाता हूँ कार लेकर, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी रोड पे मैं देखता हूँ वहां पे लोग है ना बिना देखे, मतलब उस चौराहे से डिवाइडर से उतर के ऐसे जा रहे हैं. बिठा के तो दिखा, एक बार मुझे मार तो सही फिर दिखाता हूँ. मेरे पूरे मोहल्ले वाले तरीके हालत करते हैं. मतलब उसको आप कितना भी हॉर्न दे दो नहीं हटूंगा, कर ले देख ले, तू साइड में से निकाल ले, इधर से निकाल ले, लेकिन मैं अपनी गति नहीं छोड़ूंगा, आराम से जाऊंगा और देखेगा भी नहीं उधर. मुझे क्या मालूम कौन पॉपो बजा रहा है. दिस इज द सिचुएशन, ठीक है. और दूसरा ये जो बाइक वाले हैं, रॉयल इनफील्ड वाले, और ये जो भी है जो बजाज की कौन सी आती है जो भी है, ठीक है, यूं कट मार के. अरे तुम्हें नहीं मालूम है जिस दिन स्लिपरी आया नहीं ना, वो कार वाला तो बच जाएगा क्योंकि वो तो पीछे बैठा, वो तो बोनेट से टकराएगा, ठीक है, लेकिन उसके पास तो कुछ नहीं है. तो ये सब चीजें, ये कोई है ना, कोई ऐसा नहीं है कि आप में बहुत पावर है, यू आर ए ही-मैन, सुपरमैन, नहीं, ये वो बातें नहीं. ये सिर्फ दिमाग की विकृतियां हैं. मैं लोगों को कैसे दिखाऊं, आज कट मार लिया, परसों कट मार लिया, एक दिन तो वो कट कभी फिसलेगा और फिर देखो क्या होता. फिर माँ बाप, अरे हमारे बच्चे का क्या होगा क्या नहीं होगा. ट्रैफिक सेंस नहीं है. अच्छा आपको ये भी नहीं मालूम है कि जैसे है ना ये डिवाइडर है, ये डिवाइडर है और कार यहां से जा रही है. कुछ लोग भी इतने बेवकूफ हैं कि इधर से निकालते हैं, विच इज रॉन्ग. यू डोंट नो द ट्रैफिक रूल्स. अब मान लो कार वाले ने सेफ्टी के हिसाब से थोड़ा सा इधर किया, नहीं, ये दोनों ये पिचक गया और पब्लिक आ जाएगी. पब्लिक हमेशा है ना, जो ज्यादा पैसे वाला वाहन होता है ना, उसको निकल पा रहा. आज तो उसमें हमारा कॉस्टलैंडर और अमेटेन खड़े हो, आज तो आज हम भी हाथ गर्म कर लेते, भले वो अफेक्टेड नहीं हो. और दवे सर हो तो आज तो ठीक है, हमें भाषण ले दे, ठीक है. आज तो मैंने देखा है ना, मैं तमाशे देखता हूँ सड़क पे, किसी को कोई मतलब नहीं, मालूम नहीं क्या हुआ एक्सीडेंट, मारो उसको, मारो उसको. इतनी अंदर गर्मी भरी पड़ी. तो ट्रैफिक सेंस, तो हमें ये बात आई थी स्पीड कंट्रोल. हमें इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है. अगर कुछ नहीं छोड़ा, हमने कुछ लोड नहीं लगाया, तो मोटर किस पे रन करेगी? नो लोड पे, ठीक है. पूरा का पूरा उस पर लोड लगा दिया तो फुल लोड स्पीड. अब हमें इंटरमीडिएट स्पीड चाहिए. हर चीज के लिए एक स्पीड डिफाइंड है. जैसे आपके पेपर रोलर मशीन है, ठीक है, अच्छा कांस्टेंट भी चाहिए. उसके लिए मान लो हमने तय किया कि ये पेपर नहीं निकलता, पेपर की रिम निकलती है, ठीक है, रोलर के ऊपर, तो उस रोलर की स्पीड हमें मान लो चाहिए 400 आरपीएम कांस्टेंट. क्योंकि अगर कभी 400 हो गई, कभी 450 हो गई, तो क्या होगा, वो पेपर पूरा डैमेज हो जाएगा.
तो पेपर का जो चल रहा है रोलिंग मशीन के ऊपर पेपर, ठीक है, उसके लिए कांस्टेंट स्पीड चाहिए और वो हमें कांस्टेंट स्पीड उसकी कैसे अचीव करनी है, तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। नाउ these are the two methods, one from the stator side and another from the rotor side. दो ही साइड्स होते हैं, एक तो रोटर साइड और एक स्टेटर साइड। तो स्टेटर से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बताइए। अभी आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हमने निकाले थे, उसमें आपने क्या पढ़ा कि द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। अरे इक्वेशन मैंने नहीं बताई थी, टी इज प्रोपोर्शनल टू वी एस और बताई थी कि नहीं बताई थी। सो बाय चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज। अब अप्लाइड वोल्टेज को कैसे चेंज करेंगे, अब सारे कॉमन सेंस के, कोई ऐसा नहीं कि अप्लाइड वोल्टेज को कैसे चेंज कर सकते ऑटो ट्रांसफार्मर रखे थे, अभी पढ़ा था नहीं पढ़ा था स्टार्टिंग करंट में, ठीक है। अगर हम वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाएं या वोल्टेज को कम करें, इतना भी कम नहीं करना कि मोटर स्टार्ट ही नहीं हो। इज इट क्लियर? एक बार स्टार्ट कर दिया और फिर हमें चाहिए कि हमें है ना फुल लोड स्पीड ना चाहिए, हम नो लोड स्पीड नहीं चाहिए, हमें कुछ कम चाहिए, तो हम थोड़ा सा उसको कम कर सकते हैं। सो बाय चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज। तीसरा क्या है, बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से भी आप चेंज कर सकते हैं, बिकॉज टॉर्क के फॉर्मूले में एस भी आता है। अरे एस आता है कि नहीं आता है, और एस किस पे डिपेंड होता है, आपके सिंक्रोनस स्पीड होती है ना एनएस, कितनी होती है, एनएस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। इन जनरल हम फ्रीक्वेंसी को फिक्स सकते हैं 50 हर्ट्ज, ठीक है। अगर मैं इसको भी वेरिएबल कर दूं तो my NS will change, is it not? My NS will change and therefore definitely the rotor speed will also change. अरे है कि नहीं है, ठीक है। तो अब वेरी बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। तो दूसरा मेथड क्या है, बाय चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। पहला क्या था, अप्लाइड द चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज एंड चेंजिंग अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। तीसरा क्या है, ये देखिए, सिंक्रोनस स्पीड डिपेंड अपॉन पोल्स। अभी तक हम मान के चले थे कि पोल्स फिक्स्ड है, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वी हैव द ऑप्शन ऑफ चेंजिंग नंबर ऑफ पोल्स। हम इस प्रकार का अरेंजमेंट करें, जैसे उसमें नहीं किया था स्टार डेल्टा, पहले स्टार में कर दिया फिर किस में कर दिया, डेल्टा में कर दिया। हम इस प्रकार के पोल्स बनाए, ठीक है, कि मर जाए तो हम 4 पोल बना दें, मर जाए तब हम 6 पोल बना दें, मर जाए जब हम 8 पोल बना दें। तो हमारे पास तीन स्पीड आ गई कि नहीं आ गई, 4 की अलग होगी, 6 की अलग होगी और 8 की अलग होगी। ये सब डिजाइनिंग फीचर है। सो वी बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स आल्सो वी कैन कंट्रोल द स्पीड। अब क्या आएगा, कंट्रोल फ्रॉम रोटर साइड। तो पहला कंट्रोल क्या होगा, या तो हम शॉर्ट सर्किट हटाकर उसके बीच में क्या डाल दें, रियोस्टेट। क्या डाल दें, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में डाला था। इज इट क्लियर? वो तो मैंने कहा क्या कहा था, वो न केवल स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है, बट इसके अलावा वो स्पीड को भी कंट्रोल करता है, टॉर्क को भी कंट्रोल करता है। तो रोटर के साइड बाय इंसर्टिंग रोटर रियोस्टेट इन द रोटर साइड। दूसरा, बाय ऑपरेटिंग 2 मोटर इन कैस्केड। ठीक है, ये भी एक मेथड है लेकिन एक्सपेंसिव मेथड है। 2 मोटर को एक साथ लाकर हम उसको भी स्पीड कर, वो कैसे वो हम बताएंगे, बट दिस इज ऑल्सो वन मेथड बाय ऑपरेटिंग 2। कैस्केड का मतलब समझते हो क्या है, साथ में मतलब कि आउटपुट ऑफ 1 मोटर इज फेड टू द इनपुट ऑफ द सेकंड मोटर। इज इट क्लियर? एंड इन दिस वे दे आर कनेक्टेड इन कैस्केड। लास्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, बाय इंजेक्टिंग एन ईएमएफ इन द रोटर सर्किट। रोटर के सर्किट में हम बाहर से ईएमएफ इंसर्ट करके भी हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, जनरली आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में जो लीक से हटकर है, ठीक है। अब आपको अप्लाइंग स्टेटर वोल्टेज सिंपल है, अप्लाइंग रियोस्टेट इन द रोटर